हेलो एवरीवन। तो आज हम चौथे पार्ट में आ गए हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के MHI 1 के। तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम चालू करेंगे किनशिप से। ऑल ह्यूमन ग्रुप्स रेगुलेट मैरिज एंड किनशिप विद अदर ग्रुप्स। Kinship has been defined as the recognition of relationship based on descent and marriage. Relation based on brotherhood or sisterhood is found among the primates. primates. The well-known anthropologist R. Fox maintains that the combination of alliance with descent in one system was a unique human innovation. Simply stated, no other species has in-laws. तो हम देखें अगर किनशिप क्या है, तो किनशिप का मतलब है रिश्तों की पहचान जो दो आधारों पर बनते हैं। डिसेंट होते हैं वंश खून का रिश्ता, जैसे माता पिता भाई बहन। और मैरिज दूसरा होता है शादी का रिश्ता, जैसे ससुराल वाले दामाद बहू आदि। तो जो आर फॉक्स हैं उनका विचार है कि मनुष्यों में जो गठबंधन है, जो अलायंस कहते हैं हम, अलायंस बनता है, और जो वंश होते हैं, जो डिसेंट होते हैं, उनका मेल एक खास मानवीय विशेषता है। दूसरे प्राणियों में इन-लॉज़ जो कि ससुराल के रिश्ते होते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। जैसे कि जो दूसरे जानवर होते हैं उनमें इस तरीके से रिश्ते नहीं होते हैं, पर इंसान होते हैं जो कि ये रिश्ते बनाते हैं। विवाह के ज़रिए एक समूह दूसरे समूह से जुड़ता है। जब बेटा या बेटी शादी करके दूसरे घर समूह में जाते हैं, तो दोनों समूहों के बीच एक नया संबंध बनता है। किनशिप केवल एक खून का रिश्ता नहीं है, यह एक सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप भी है। जैविक रिश्ते सीमित होते हैं, पर जो सामाजिक रिश्ते होते हैं वो बहुत बढ़कर होते हैं, आगे होते हैं। नियमों और परंपराओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है उसको। This innovation allowed humans to link up and ally with some other groups. By maintaining ties with a son or daughter who moved to another group after marriage, human created relationship with the group to which the offering had moved. The most important aspect of kinship is that it is not simply about biological relationship, it is about social relationship. Biological connections are very narrow. Kinship, on the other hand, can be extended as far as the local convention require. In many human communities, every known person is treated as a kinsman, so that marriages are simply renewals of links that have already existed. With kinship, humans could depend on each other in times of food shortage or incursion by a hostile group. This also ensured sharing the knowledge of a large number of groups. Since it ensures a healthy flow of genes over a large area, communities having kinship would have a greater chance of biological सर्वाइवल एंड एक्सपांशन। तो अगर देखा जाए तो कई समाजों में लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में रिश्तेदार माना जाता है। विवाह पुराने संबंधों को दोबारा मजबूत करने जैसा होता है। संकट के समय भोजन की कमी, दुश्मन का हमला, लोग अपने रिश्तेदारों पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे किसी पर कोई दिक्कत आ रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारी मदद करेंगे पैसे से और मसल सपोर्ट से भी। इससे अलग-अलग समूहों में सहयोग, संसाधनों का बंटवारा और सुरक्षा सुनिश्चित होता है। बड़े क्षेत्र में जहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्र में जीन्स का जो स्वस्थ आदान-प्रदान होता है, जिससे जैविक विकास और जीवित रहने की संभावना बढ़ती है। अब अगर देखा जाए तो अगर हम इसको मोटा-मोटी तौर पे समझें तो खून और शादी दोनों पर आधारित है ये किनशिप का रिश्ता, और अलग-अलग समूहों को जोड़ती है। समाज में सहयोग, सुरक्षा और अस्तित्व को मजबूत बनाती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हाउ डिड किनशिप इमर्जेस? तो आर फॉक्स believes that the emergence of kinship is related to the gradual shift to a non-vegetarian diet. The hunting transition was well under way by early H. erectus. This had important consequences for the relationship among the early humans. The large-scale hunting of the larger animals might have led to the creation of more rigid sexual division of labor. This form of hunting required a mobility that would exclude women who were hunting or nursing young children. Foraging could be undertaken by the whole community and fully integrated with other social activities such as singing, chatting, and child care. Hunting, on the other hand, requires stealth and
silence, silence and tend to become the preserve of able-bodied men. Men went for hunting, women for gathering, earlier everyone. अब हम इसको देखें तो किनशिप किस तरीके से आई है, इमर्ज कैसे हुई है, इसकी उत्पन्न मतलब ये उसकी उत्पत्ति हुई कैसे है। तो आर फॉक्स इसमें कहते हैं, इनका मानना है कि रिश्तेदारी शुरुआती उस समय हुई जब मानव समाज में धीरे धीरे शाकाहारी भोजन से मांसाहारी भोजन की ओर बदलाव हुआ। इस बदलाव को हंटिंग ट्रांजिशन कहते हैं और इससे फिर लोग परिवर्तित होने लगे। बड़े जानवरों का शिकार शुरू होने से समाज में बड़ा परिवर्तन आया। शिकार करने के लिए तेजी और गतिशीलता, मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूरत थी। इससे पुरुष और महिला के कामों का विभाजन हुआ, जिसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया। जो महिलाएं बच्चों की देखभाल करती थीं या गर्भवती थीं, वे शिकार में भाग नहीं ले सकती थीं, इसलिए पुरुष बड़े जानवरों के शिकार में अधिक शामिल हुए। दूसरी ओर भोजन इकट्ठा करना, फल फूल, कंदमूल आदि और समुदाय द्वारा किया जा सकता था और इसमें सामाजिक गतिविधियां भी शामिल थीं। शिकार में चुप्पी और सावधानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए यह काम अधिकतर सक्षम पुरुषों तक सीमित हो गया। इसका क्या परिणाम निकला? पुरुष शिकार पर ध्यान देते थे और महिलाएं भोजन संग्रह, जो कि गैदरिंग का काम करती थी, और बच्चों की देखभाल करती थी। इस नए कार्य विभाजन से पुरुष और महिला के बीच भोजन का आदान प्रदान, एक्सचेंज शुरू हुआ। यही भोजन का आदान प्रदान आगे चलकर रिश्तेदारी और पारिवारिक संबंधों की नींव बना। अगर और हम देखें इसके बारे में तो शिकार की शुरुआत और काम के बंटवारे ने पुरुष और महिला के बीच निर्भरता बढ़ाई, जिससे परिवार और रिश्तेदारी की व्यवस्था विकसित हुई। Men went for hunting, women for gathering. Earlier, everyone forced for himself or herself. With the new sexual division of labor came a need for exchange in food between male and female. This trade exchanged their relations with each other. Before this time, there were all male associations as among chimpanzees and all female with young associations. With the sexual division of labor, however, men and women needed one another in a new way for food, for exchange of vegetables and meats. This trade, according to Fox, is probably at the root of true human society. तो इसमें देखा जाए तो पहले समाज में सिर्फ पुरुषों के समूह जैसे चिंपैंजी में देखे जाते थे और सिर्फ महिलाओं के समूह बच्चों के साथ होते थे। लेकिन जब काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, तो पुरुष और महिला एक दूसरे पर निर्भर हो गए। पुरुष लाते थे मांस, शिकार करा हुआ, महिलाएं लाती थी सब्जियां, फल आदि गैदरिंग इकट्ठा करके। इस तरह भोजन का आदान प्रदान, एक्सचेंज शुरू हुआ। आर फॉक्स ने के अनुसार यही आदान प्रदान मानव समाज की शुरुआत की जड़, जो कि रूट कॉज है, ये बताया जाता है। इससे छोटे छोटे परिवार, डोमेस्टिक यूनिट्स बने, जिनमें पुरुष, महिला और उनके बच्चे साथ रहने लगे। रिश्तेदारों की दो और महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। एक तो इंसेस्ट टैबू। अब इसे देखा जाए तो ये इंसेस्ट टैबू मैंने यहाँ हाईलाइट भी करा हुआ है। दिस ट्रेड अकॉर्डिंग टू फॉक्स इज प्रोबेबली एट द रूट ऑफ अ truly human society. This encouraged the creation of domestic units that would eventually bring together adult males, females, and their youngs. There are two other distinctive features of human kinship. Most human societies practice incest taboo. Humans also invented exogamy. The rule, ये exogamy को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा है, ये हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये incest taboo और exogamy. The rule whereby one must marry outside a certain group. Exogamy helped people to make connections with other groups. If a group forbids marriage within itself, it is forced to acquire spouses from other groups. When that happens, harmonious relationship between the groups are promoted by the fact of their interdependence for spouses. This was important to early humans armed with lethal weapons. As groups expanded and bumped into one another, possibly competing for resources, the idea of kinship and marriages could be used to prevent hostilities. Modern ethnography suggests that kinship was tightly interwoven with economic, political and religion. अब जो इंसेस्ट टैबू होता क्या है? निकट संबंधियों में विवाह निषेध। मतलब जो लोग हैं
वो अपने आसपास में शादी नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं करेंगे, किसी दूसरे कुटुंब में जाके शादी करेंगे। मानव समाज में अपने ही परिवार में बहुत नज़दीकी रिश्तों में विवाह करना मना किया गया। इसे इंसेस्ट टैबू कहते हैं। एक्सोगैमी, इंसानों ने यह नियम बनाया कि विवाह अपने समूह से बाहर करना चाहिए। इसे एक्सोगैमी कहते हैं। इससे अलग अलग समूहों के बीच संबंध बने और सामाजिक जुड़ाव बढ़ा। इसका महत्व ये हुआ कि जब कोई समूह अपने अंदर विवाह की मनाही करता है तो उसे दूसरे समूह से विवाह संबंध बनाने पड़ते थे। इससे अलग अलग समूहों के बीच सहयोग और शांति बनी रहती थी। यह उस समय बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग संसाधनों जैसे खाद, भूमि आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और उनके पास हथियार भी होते थे। इसका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि शिकार और काम के बंटवारे से पुरुष महिला के बीच निर्भरता बढ़ी, भोजन के आदान प्रदान से परिवार बने और इंसेस्ट, टैबू और एक्सोगैमी से अलग अलग समूहों में संबंध मजबूत हुए। इस तरह रिश्तेदारी, जिसे हम किनशिप कहते हैं, मानव समाज की मूल आधार बन गई, जो आगे चलकर आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन से भी जुड़ गई। अब है व्हेन डिड किनशिप इमर्ज। अब ये इमर्ज कब हुआ, तो इसके बारे में हम देखते हैं। It is difficult to write the history of kinship. Fascinating evidence for kinship comes from 17,000 years old settlements on the Kom-Ombo plains along the Nile in Egypt. It shows a cluster of settlement of about 25 to 30 people each. Each of these groups made particular kinds of tools and their techniques of food gathering too were distinctive, considering the fact that these groups lived in close proximity for a long time. It is likely that kinship connected them all. इथनोग्राफी सजेस्ट दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, आप भी अपने बुक में मार्क कर सकते हैं चाहें तो। इथनोग्राफी सजेस्ट दैट वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ किनशिप इन एक्सचेंज ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज गुड्स इन द context of the prehistoric past. The evidence for exchange can be a pointer to the presence of kinship. That is why we shall examine the evidence for exchange in prehistoric societies. तो अब इसमें हुआ क्या कि रिश्तेदारी का सही इतिहास लिखना कठिन है, लेकिन इसके प्रमाण बहुत पुराने समय से मिलते हैं। इजिप्ट, जो नाइल नदी के पास कोम-ओम्बो के मैदानों में लगभग 17,000 वर्ष पुरानी बस्तियां जो सेटलमेंट्स हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। वहाँ 25-30 लोगों के छोटे छोटे समूह साथ रहते थे। हर समूह के पास अपने खास औजार, टूल्स और भोजन जुटाने की अलग तकनीक थी। यह समूह लंबे समय तक एक दूसरे के पास रहते थे। इससे यह संभावना जताई गई है कि उन्हें रिश्तेदारी, किनशिप ने आपस में जोड़े रखा था। मुख्य विचार, इथनोग्राफी बताता है कि रिश्तेदारी का एक मुख्य कार्य एक्सचेंज है, यानी केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों जैसे विवाह संबंध का भी आदान प्रदान होता था। प्रीहिस्टोरिक समाजों में वस्तुओं के आदान प्रदान के प्रमाण मिलते हैं जो रिश्तेदारी की उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि रिश्तेदारी का उदय बहुत प्राचीन काल में लगभग 17,000 वर्ष पहले छोटे छोटे मानव समूहों में हुआ। माना जाता है इस समूहों को आपस में जोड़ने का काम रिश्तेदारी और आपसी आदान प्रदान ने किया। अब हम पढ़ते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में व्हेन एडम स्मिथ रोट द ह्यूमन्स हैव बार्टर्ड एंड एक्सचेंज फ्रॉम टाइम्स immemorial, he was making a statement about a unique characteristics of the human communities. Unlike other animals, humans barter and exchange goods with outsiders. It is relatively easier to write history of exchange. तो एडम स्मिथ ने कहा था कि मनुष्य बहुत पुराने समय से ही वस्तुओं का आदान प्रदान, जो कि बार्टर और एक्सचेंज करते आए हैं। यह मानव समाज की एक विशेष पहचान है। जानवरों के विपरीत मनुष्य अपने समूह के बाहर के लोगों से भी वस्तुओं का लेन देन करते थे। This can be judged from the fact that if some object stones in this context are found which are not available locally, one can presume that they have been procured from other communities who live in those areas, although that too will not be true in all cases. This is because we know that hunting gathering communities are mobile groups. This means that they might have picked up those stones during their seasonal migration. अगर किसी जगह पर ऐसे पत्थर की वस्तुएं मिलती हैं जहां वहां क्या कहते प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, तो माना जाता है कि वह दूसरे क्षेत्र से
लाई गई होंगी, लेकिन सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि वह व्यापार था, क्योंकि शिकारी जो हंटिंग गैदरर्स थे, हंटिंग गैदरिंग समूह घूमते रहते थे और वे पत्थर खुद भी उठा सकते थे। This means that they might have picked up those stones during their seasonal migrations. When our ancestors realized the potential and possibilities of stone for shaping tools, they began looking for stones that could give sharper edge and had longer life. Obsidian is one such stone, but it is rare type of stone. अब जैसे ये important है, ये ऑब्सीडियन स्टोन, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्सिडियन। तो जब प्राचीन मानव ने औजार बनाने के लिए तेज धार वाले पत्थरों की खोज की, तब ऑब्सिडियन बहुत उपयोगी साबित हुआ। यह पत्थर औजारों को तेज और टिकाऊ बनाता था। लगभग 1,30,000 वर्ष पहले तंजानिया में 2 स्थानों पर ओब्सिडियन के प्रमाण मिले हैं। यह पत्थर कीनिया की रिफ्ट वैली से लगभग 300 किलोमीटर दूर से लाया गया था। But it is a rare type of stone. About 1,30,000 years ago, 2 sites in Tanzania have yielded evidence for the use of obsidian. This stone has been obtained from Kenya's Central Rift Valley, located at the distance of 300 km. Hunters moved around quite a lot, so obsidian could have been obtained during a hunting expedition. It is a solitary evidence. Flint is another stone which our ancestors found useful. Its crystal textures helps produce sharp and efficient tools. तो अगर हम ऊपर वाले का निष्कर्ष देखें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि प्राचीन मानव केवल शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि दूसरे समूह से वस्तुओं का लेन देन भी करते थे। ऑब्सिडियन जैसे पत्थरों के दूरस्थ स्रोत से मिलने के प्रमाण बताते हैं कि जो एक्सचेंज था ये रहता भी था, हो भी सकता है, और लोग खुद भी उठा के ला सकते हैं क्योंकि वो सक्षम थे ये काम करने में। अब हम पढ़ते हैं फ्लिंट के बारे में। फ्लिंट, तो फ्लिंट एक ऐसा पत्थर है जिसे हमारे पूर्वज उपयोगी मानते थे। इसकी क्रिस्टल जैसी बनावट, जो क्रिस्टलाइन टेक्सचर होती है, जिससे तेज और मजबूत औजार बनाए जा सकते हैं। एक और पत्थर था क्वार्ट्जाइट, जिसका भी उपयोग औजार बनाने में होता था। अनदर स्टोन विच वॉज चूजन बाय आवर एंसेस्टर्स वॉज क्वार्ट्जाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम हुआ, एनपीपीएससी या जो भी आप देते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वार्ट्जाइट। These stones are not available everywhere. Our ancestors tried to get them from distant places. For example, it has been found that at the 20,000 years old site of Kostinki in Russia, flint tool had been brought from a distance of about 160 km. Based on parallels with modern ethnographic evidence, we can assume that these flint stones were procured by the people at Kostinki through a process of exchange. Modern foraging communities periodically gather in one place and exchange women and gift valuables to each other. There is a famous saying, gifts make friends and friends make gifts. ये important है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं दूर से लाए गए पत्थरों के प्रमाण। ये पत्थर हर जगह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमारे पूर्वज इन्हें दूर दूर के क्षेत्रों से लाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जो रशिया है, कोस्टिनकी नामक स्थान, लगभग 20,000 वर्ष पुराना स्थल पर फ्लिंट का औजार मिले हैं। यह औजार लगभग 160 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। इससे पता चलता है कि लोग या तो दूर तक यात्रा करते थे या फिर एक्सचेंज के माध्यम से ये पत्थर प्राप्त करते थे। आज भी कुछ शिकारी जो हंटर गैदरर्स हैं, समुदाय समय समय पर एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। महिलाओं के विवाह के लिए आदान प्रदान करते हैं, उनके गिफ्ट्स वगैरह का भी आदान प्रदान होता है। तो एक ये इम्पोर्टेंट लाइन दी है, गिफ्ट्स मेक फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स मेक गिफ्ट्स, है ना। उपहार मित्र बनाते हैं और मित्र उपहार देते हैं। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो फ्लिंट और अन्य पत्थर जिसके हमने बारे में डिस्कस किया है वो दूर दूर से पाए गए हैं। तो प्राचीन समाजों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इससे हमें पता चल जाता है कि लोग उस टाइम पर भी लेन देन करते थे, ट्रेड होता रहता था। लेकिन उपलब्ध प्रमाण
20,000 ईसा पूर्व से पहले के, बिफोर क्राइस्ट के विनिमय का पूरा इतिहास स्पष्ट नहीं बताते। मतलब यहाँ पर हमें फिर भी प्रॉपर, मतलब हम इतना इसकी पूरी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पहले का है ये टाइम। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इन्वेंशन ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस देखेंगे। थैंक यू। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।